No one is here till now. We'll just wait for people to join. Sure. Yeah. Expecting a good chunk of audience who have completed the snap and got the scores. Right. So we'll let people ask other questions also, not just related to Snap, whatever their MBA queries are. Yeah. But majorly, our intention is to do it for Snap since the results came out today. Right. Right. I think we have one person here, one person who has joined. Hi, good evening. Whosoever has joined, good evening. Good evening. I was joined. So we'll start taking questions, okay? Once people start typing. I think now a lot of people have joined. Some people, four people have joined, I guess. Hi Right. guys. Hi Mayank. Hi Preetham. How are you? Hope you guys are doing well. तो ये लाइव सेशन हमने किया है आज प्लान. So the reason is because today the results for Snap is out, and so we would like to take any questions like what is the what is your score, what is your percentile, and like what are your expectations? Any questions that you have with regards to any Snap-based colleges, and any questions that you have with regards to the further next round process, which is there, GDPI what round, which is there for all the Symbiosis college. So myself and Kirti, we are both Symbiosis alums. I am from SCMHRD Pune, and Kirti is an alum of SIOM Nashik. So if you have any questions whatsoever, you can just feel free to ask. So Mayank has asked one question. He has scored 98 percentile in Snap. Brilliant. That's a great score, 47. Yeah. Congratulations, Mayank. Good man. Congratulations. That's a brilliant score. Yeah. तो आई थिंक इसमें आपका SCMHRD का कॉल तो होपफुली आ ही जाएगा. SIBM 19-20 में है, मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. प्रीतम 98.4 परसेंटाइल यार, ब्रिलियंट. आपका SIBM पुणे का कॉल थोड़ा मार्जिनल टेरिटरी में है, क्योंकि कुछ ईयर्स 98.3 98.4 कट ऑफ होता है, कुछ ईयर्स 97.8 97.9 भी होता है. वी हैव टू वेट एंड सी कि किस किस परसेंटाइल रेंज में आपका कॉल आता है. बट देन यू आर इन गुड टेरिटरी. आपका SCMHRD का तो कॉल आ जाएगा. SI PM पुणे यू मे गेट एट 98.4. देयर इज अ डिसेंट चांस दैट यू मे गेट. बट अगर कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हाई रहा है तो मिस भी करोगे तो बहुत विस्कर से मिस करोगे. फिर Right. 98.19 SCMHRD BA का कॉल. ऋतुव्रता मुखर्जी, आपको SCMHRD BA का कॉल आ जाएगा 98.19 में. यू शुड गेट अ कॉल as far as SCMHRD business analytics course is concerned. यूजुअली 96 95 प्लस में कॉल आ जाता है. 96 97 प्लस में कॉल आ जाता है. इनफैक्ट आपको कोर से भी कॉल आ सकता है 98.19 में. उसको यू हैव गॉट देयर विद ब्रता. सर डज गैप ईयर मैटर? नो यार, आप जैसे अपने अच्छी परसेंटाइल लाई है मयंक, तो गैप ईयर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू गिव योर इंटरव्यूज. अब आप गैप ईयर बोल रहे हो, 1 साल का ये गैप है या 2-3 साल का गैप है, दैट आई डोंट नो. बट 1 साल का गैप है तो क्लियरली आप थोड़ा इसके लिए प्रिपेयर करके जा सकते हो इंटरव्यू में बताने के लिए. इवन इफ द इंटरव्यूअर आस्क्स, जनरली इंटरव्यूअर्स पूछते नहीं है अगर गैप 6 मंथ्स टू 1 ईयर का गैप है, बिकॉज इट इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट एंड आप रिसेंट अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के ही पास आउट स्टूडेंट हो. But do ensure that you are preparing well. Okay, you are a 2024 graduate. So that makes it almost what? Close to 2 years आपका गैप है, कि आपने 2 साल में 2 साल का गैप है, राइट? सो आपको बेसिकली दिखाना होगा कि आपने ये 2 साल में क्या प्रोडक्टिव काम किया है. It's like either you have used these 2 words to 2 years to acquire any sort of a skill set, do any course, do any sort of a certification. Basically आपको दिखाना है कि आपने इन 2 साल में कुछ तो यूजफुल किया है. बिकॉज जस्ट एन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप करके आपका, अगर आप ये बता रहे हो कि मैंने एग्जाम के लिए ड्रॉप किया, तो देर विल बी अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो जो बिना ड्रॉप करे फुल टाइम जॉब करते करते लेकर आ रहे हैं, राइट? मैं एंड कीर्ति, बोथ ऑफ अस, वी वर व्हेन वी रोट दिस स्नैप एग्जाम, बोथ ऑफ अस वर वर्किंग. So we did not take any gap year. So yeah, so like there are people like that also. तो आपके अगेंस्ट वो हो सकता है, तो इंश्योर कि आप जस्टिफाई करो. This will not decide whether you get selected or not, but at the same time, it is important that you prepare well for that answer. Showcase that you have done at least something, something tangible. If any certification you have done, if you maybe you have a father's business, you might have worked over there. Any specific thing that you would have done,
So try to highlight that to your interview. So great. So गौरव, हाय गौरव। यार Yeah. 98.4 जैसे कि मैंने पहले भी बोला थोड़ा बॉर्डर लाइन पे है। लाइक इट डिपेंड्स, कुछ साल 98.2, 98.1 कट ऑफ होता है, कुछ साल 98.6, 98.5 तक भी जाता है। तो कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, बहुत बॉर्डर लाइन टेरिटरी पे हो आप। आई स्पीक टू 28 जो कोई भी है, वेरी मच बॉर्डर लाइन टेरिटरी। यू मे गेट अ कॉल एससीएमएचआरडी से, तो आई थिंक यू शुड गेट अ कॉल, बट एसआईबीएम पुणे इट कैन बी अ हिट और अ मिस, बट कीप योर होप्स हाई, होपफुली आना चाहिए आपको कॉल 98.4 में। So thank you for all your realistic enhanced salary videos after placement from top colleges, काफ़ी क्लैरिटी मिला। थैंक्स अ लॉट प्रीतम, थैंक यू। तो मेरे एक्सपीरियंस में जो है, मतलब जो मैं खुद देखा हूँ एज़ अ स्टूडेंट ऑफ एससीएमएचआरडी एंड व्हाट माय फ्रेंड्स आर अर्निंग, व्हाट माय पीयर्स आर अर्निंग, so that gives me a rough idea कि कितना लोग कमाते हैं। So I thought I'll share that video with you. So we have 8 people connected with us right now. So just ask your questions, feel free to ask. I think काफ़ी ऑडियंस थोड़ा हुँ, लाइक हाँ। हाँ, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। So for those of who don't know, me and Kirti, we are both working right now. So maybe आपको कुछ और questions आए इससे। So I am working with Maruti Suzuki as a territory sales manager, and Kirti is working as a consultant in Ernst& Young. So if you have any questions with regards to that also, please feel free to ask, and Snap and Cat के तो हम questions ले ही रहे हैं। So we have 9 people right now who have connected with us. How to get GPM 45 plus in GDPI? Okay, Kirti, would you like to take this question? क्योंकि जीपीआई का थोड़ा वो है। Yeah, I mean, so see, group activity and personal interview में मतलब see if you get a call from a college, आपका half the process उसमें काफ़ी मतलब 60% consider it done. लेकिन उसके आगे जो GPA rounds होते हैं that also hold quite a lot of weightage. आपको मतलब सबसे पहले तो आपका एक्टिविटीज़ जो आपको करवाएँगे ग्रुप में, उसमें आपको देखना है कि आप लीडरशिप ले पाएँ या फिर आप अपना ग्रुप में एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू बी सो मच कि आप इतना लीडरशिप के लिए लोगों से बाद में बातें करने लगे उनके सामने तो इट विल नॉट मेक अ गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। तो आप उस हिसाब से थोड़ा कॉशियसली बात करें एंड ग्रुप में ट्राई करें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें एंड उसके बाद में कंक्लूजन लाइक स्पेसिफिक कंक्लूजन दें उसके बारे में एंड देन इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू में भी द स्कोर्स वुड काउंट। आप इंटरव्यू के स्पेसिफिक क्वेश्चंस कुछ एक बहुत एक फ्रेमवर्क होता है कुछ सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड लाइक व्हाई एमबीए, आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं? उसमें इंटरव्यू का इंटेंट होता है कि आपका पर्पस क्या है डूइंग एन एमबीए या फिर आप आगे आपका करियर एस्पिरेशंस क्या हैं वो जानने के लिए। तो अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर दोज़ क्वेश्चंस एंड आप यू कंसिडर इट डन आफ्टर मतलब आपका अगर अच्छा स्कोर आया है तो आपका काफ़ी चांसेस हैं कि ऑलरेडी 60-70% सिलेक्शन हो गया है। Great. नेक्स्ट So क्वेश्चन Neha has asked, a question. 46.75 percentile, 96.87 में SIBM पुणे एंड SCMHRD पुणे। यार इसमें आप बॉर्डर लाइन मिस कर सकते हो 96.8 में। इट्स अ वेरी गुड स्कोर नेवरदलेस, बट बॉर्डर लाइन क्योंकि SCMHRD का जनरली अराउंड 97 एंड हाफ के आसपास रेंज करता है कट ऑफ, SIBM तो 98 एंड बियॉन्ड ही रहता है मोस्टली। सो टच एंड गो हो सकता है। So I can see one of the channels, MBA Gym Wala, has also commented. So for those who don't know, he is also a alum from SCMHRD. So he also is running a YouTube channel. Thanks, bhai. Thanks a lot. And आपकी भी वीडियोस मैं देखता हूँ. You are also doing a great job. Thanks, bhai. Thanks a lot. Thanks you. Thank you, यार.
Then we'll take a next question from Atharva. So GEPI tips for SIOM and SIIB. So Kirti is an alum of SIOM, so she can take this question once श्योर। again. ठीक है, तो देखो जीईपीआई में आप हमारे टाइम पे लाइक व्हेन आई गॉट प्लेस्ड विद मतलब एडमिशन यहाँ पे हुआ था एसआईओएम में, तब मेरा जीडीपीआई होता था, तब जी ग्रुप डिस्कशंस राउंड होते थे। बट नॉनदलेस मतलब वहाँ पे भी सिमिलर प्रोसेस, सिमिलर अप्रोच होता है। देयर नीड्स टू बी सम पर्सन हू टेक्स द लीडरशिप, हू टेक्स द इनिशिएटिव एंड लाइक डोंट ट्राई टू स्टार्ट राइट अवे। जब स्टार्ट हुआ डिस्कशन, सो आई विल बी द लीडर एंड ऑल दैट। Don't try to discuss these things in front of the interviewer, and try to maintain a good decorum. If someone is not uh, uh, if in group discussions or like group activities you notice कि कोई अलग तरीके से मतलब नहीं जा रहा है, तो you can also maintain that decorum. And उसके बाद में at the end you can give some concluding statements के and summarize सब लोगों ने क्या activities perform किया है, या फिर इंडिविजुअल को कुछ मतलब definitely, Amol, you had gone through that GE round, right? So you can Right, give right, your right. experience in terms of GE rounds, and I can explain about the PI process. राइट, राइट। सो जीई में बेसिकली क्या होता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय लाइक नॉट जस्ट फॉर अथर्व, इट इज फॉर एवरीवन हु इज अपीयरिंग फॉर दीस प्रोसेसेस। So the thing is that क्योंकि अब आपका एक decent percentile आया है, it is very important to go to these rounds prepared, okay? Because if you go without preparation, you will be caught off guard, and your months and months of effort will go into vain. So please dedicate this month, जो भी 3-4 हफ्ता आपको मिलता है, 2-3 weeks आपको मिले हैं, please put aside any other work that you are doing and prepare very well. सो जनरल एमबीए के क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज के, उसको आप पहले प्लीज प्रिपेयर करो, ब्रश अप ऑन दी जनरल करंट अफेयर्स टॉपिक्स जो अभी रेलेवेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल हैपनिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ अक्रॉस द वर्ल्ड, जो बहुत सारे बी स्कूल्स में पूछे जाएंगे डेफिनेटली। तो मेक श्योर यू हैव एन ओपिनियन ऑन ऑल ऑफ दैट एंड मेक श्योर यू आर अवेयर अबाउट इट, डोंट बी कॉट ऑफ गार्ड। तो एज फार एज जीई राउंड इज कंसर्न, सो देखिए, एक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस ऑन माय पर्सनल जीडीपीआई एक्सपीरियंस एट एससीएमएचआरडी। यू कैन हैव a look it from my channel, but I'll just say it once again over here. So GE is pretty much different from a GD. GD में क्या होता है, आपको एक टॉपिक मिलता है and the entire panel that is sitting, they have to discuss on that topic, maybe arrive at a conclusion. However, a group exercise or a GE is different from a GD. तो जीई में क्या हो सकता है, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, ठीक है? एक सिचुएशन, जैसे आपको एग्जांपल देखो, जैसे मैं जब मेरा जब राउंड हुआ था एससीएमएचआरडी में, तो दी ग्रुप एक्टिविटी दैट वाज गिवन टू मी वाज लाइक 8-9 लोग थे यहाँ पे, हमारे साथ 8-9 लोग बैठे हुए थे, एंड तो कुछ प्रॉप्स रखे हुए थे रूम में। एक सनग्लासेस था, एक एक एप्पल रखा हुआ था, आई रिमेंबर अ पीस ऑफ चॉक, डस्टर था, पेन थे, कुछ प्रॉप्स रखे हुए थे वहाँ पे, ठीक है? एंड आपका पास पूरा व्हाइट बोर्ड आपको दिया गया था, एंड आपको बोला गया था वहाँ पे कि हर बंदा वहाँ पे जो है, आपको एक सुपर पावर मिलेगी। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी सुपर पावर मिलेगी। इट कैन बी लिटरली एनीथिंग, फिक्शनल भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। तो आपको वो सुपर पावर मिलेगी, एंड आपको वो जो प्रॉप्स पड़े हैं उसको यूज करके दुनिया में एक द वर्ल्ड इज अबाउट टू गेट डिस्ट्रॉयड। तो आपको क्या करना है, आपको पहले 8-9 लोगों में आपको एक ग्रुप लीडर सेलेक्ट करना है, आपको खुद इलेक्ट करना है, और इस ग्रुप लीडर को बाकी के 8 टीम मेंबर्स को अलाइन करके उनकी टीम बिल्डिंग स्किल्स देके किस तरीके से आप अपने एफर्ट्स को अलाइन करेंगे, एंड क्या क्या सुपर पावर्स आप सेलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू आप दुनिया को लाइक बर्बाद होने से बचा सकते हो। तो इट इज वेरी हाइपोथेटिकल, वेरी वेग टॉपिक, बट व्हाट दे सी इज योर क्रिएटिविटी, हाउ यू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ इन ग्रुप्स। क्या आप बाकी लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो या नहीं, ग्रुप डायनेमिक्स कैसे हैं आपके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जब कंपनीज में काम करोगे तो यू हैव टू वर्क इन टीम्स। यू कांट वर्क इन साइलोज, यू कैन नॉट वर्क इंडिविजुअली, राइट? आपको टीम एज अ टीम मेंबर काम करना पड़ेगा, एंड कलेक्टिवली यू हैव टू अचीव गोल्स। तो वहां पे ये सब चीजें देखी जाती है कि हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ इन अ टीम, हाउ यू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, व्हाट इज योर क्रिएटिविटी लेवल, एंड हाउ डू यू कम आउट एट सॉल्यूशंस। बेसिकली आपका अप्रोच देखा जाता है, इसमें कुछ सही या कुछ गलत नहीं होता। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। इसके अलावा कोई केस स्टडी भी दी जा सकती है आपको, जैसे आपको बताया कि अभी हाल ही में वो ज़ोमैटो वाला इशू चल रहा है, दीपेंद्र गोयल ने पॉडकास्ट भी किया है राज शमानी के साथ, एंड लाइक बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है कि वेदर गिग वो 10-15 मिनट डिलीवरी है उसको रखना चाहिए, उसको अबॉलिश कर देना चाहिए ऑल टुगेदर। तो इसमें आपका पर्सपेक्टिव पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको एक पैनल बना के देना जाए, एंड आपको डिसाइड करना है कि इसको रखना है या नहीं। उसके बाद एंड में वोटिंग होगी, एंड एट द जो वोट्स होगी उसके बेसिस में आप डिसीजन पास होगा कि ये रहना चाहिए या इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द type of case studies that you can get. So just prepare well, just be aware about the surroundings.
अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिस कराना चाहते हो, प्रैक्टिस करिए। आपस में कुछ 4-5 फ्रेंड्स मिलके ऐसे सिचुएशंस प्रैक्टिस करने चाहते हो तो प्रैक्टिस करिए। डू प्रैक्टिस अ लॉट अबाउट एक्सटेम्पोज़ आल्सो, क्योंकि एक्सटेम्पोज़ वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। You might be given any random topic out of the blue and you may be asked to speak about it for a minute or two. So be prepared to face such rounds also. So that is out. So you can go and explain about PI right now. क्या-क्या करना श्योर, चाहिए basically. श्योर। सो या थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। सो जीई के बारे में भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं या हाइपोथेटिकल सिनेरियोज़ बता सकते हैं कि क्या आ सकता है, लेकिन एट दैट मोमेंट यू हैव टू बी, मतलब यू हैव टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड आपको कैसे क्रैक करना है वो इंटरव्यू, वो ग्रुप एक्टिविटी को, वो आपको देखना है। एंड इंटरव्यू के बारे में मैं बोलूँगी, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, आप उसके बारे में पहले से प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। लाइक योर रेज़्यूमे बेस्ड क्वेश्चन, बी वेरी थरो विथ योर रेज़्यूमे एंड आपने जो पहले, अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको कौन से एरिया में वर्क एक्सपीरियंस है एंड उसके बाद में आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं? तो व्हाई एमबीए इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बारे में मैंने आज ही वीडियो पोस्ट किया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। द अदर थिंग इज़ अबाउट रेज़्यूमे एंड मतलब आप आगे एज़ अ करियर, व्हाट आर योर करियर एस्पिरेशंस, आप क्यों देख रहे हैं? और मुझे याद है कि इन एसआईओएम दे हैड आस्क्ड मी अबाउट सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस रिलेटेड क्वेश्चन, कि वो ऑप्टिमाइज़ कैसे करोगे एक बस को, रूट ऑप्टिमाइज़ेशन के ऊपर कुछ था। इट हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर एंड एट द सेम टाइम इट हैज़ टू गो लाइक ड्रॉप पीपल एट सम अदर पॉइंट्स एज़ वेल। सो वहाँ पे हाउ कैन लाइक लॉजिस्टिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। हाउ विल यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट? मतलब they just want to know the approach, and if you know the basics about where you are, in which stream you are going into, and थोड़ा बहुत, क्योंकि उनको ये माइंडसेट इसलिए देखना होता है क्योंकि उनको आगे चल के आपको प्लेसमेंट्स दिलाने हैं, राइट? एंड इफ यू डोंट हैव दैट एस्पिरेशंस, इफ यू आर नॉट thoroughly researched about it, then it will be a little difficult on their side also to place you. So इस वजह से they ask you certain questions which you have to be thoroughly prepared with. So उसके प्रिपरेशन के साथ जाइए, प्लस ऑन द स्पॉट आपको जो प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के, या आपको जो समझ में आता है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं पता है, so you can also say कि I'm eager to learn all about these concepts during my MBA, and अब लर्निंग एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। ऑल्दो डेफिनिटली हम सबका पर्पस एक ही होता है, आगे जाके सैलरी का इंक्रीमेंट एंड हायर बेटर पेचेक, बट ऐसा चीज़ें हम बोल नहीं सकते इंटरव्यू में। बट या सो that thing apart, just focus yourself on the learning aspect of the MBA and the kind of exposure it will provide you, the personality development which you will have after doing your MBA, and like you will have to participate in as much as possible events, committee meetings, and everything, so that you are right there when a particular interview, when a particular company comes into the campus. Also, you are the front face of everything, of all the events and everything, so that the people recognize you, and you also gain certain leadership skills in the go on the go. So that's all about PI interview, and yeah, definitely prepare for certain topics, but कुछ चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ती है। So yeah, that's all. Right. Thanks, Preeti. So, Ayan is asking, I am working in Flipkart chat. Flipkart chat. Okay, my earning is 15K since last 3 years. What should I do? There's a lot of pressure. So I need some tips. यार मतलब इट्स टाइम कि आप थोड़ा देख सकते हो कि मतलब ऑप्शंस थोड़े एक्सप्लोर करो। डू यू हैव अ फॉर्मल डिग्री? डू यू हैव ग्रेजुएशन डिग्री? इफ यस, कौन सी डिग्री है आपके पास? सो लाइक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विदाउट एनी प्रायर कॉन्टेक्स्ट विल नॉट हेल्प अस इन आंसरिंग देम, राइट? So you can do a lot of things. I am not like suggesting you to do an MBA right now because I don't know like what is your prior experience, what is your educational background, what is your profile like. So keep working and try to look for a job that pays you like little bit more. Try to acquire some tangible skill sets that will help you getting a better paying job. So that is what I would like to say to you. Then Anand Pandey is asking 94.1122 percentile in SIBM Bangalore possible. Yes, very much. आपको SIBM Bangalore का call आ जाना चाहिए 94 percentile में. 94 to 93 to 94 के आसपास रेंज रहता है, तो you should be able to get a call from SIBM Bangalore. Then Neha Jain is asking SIOM Nasik, SIBM Nagpur, SSPF Pune, SIHS Pune, SIBM Noida, Hyderabad, Pune. Is there any of these forms worth filling at 96.75 percentile since I have missed SIIB and SIBM? Okay. तो SIIB and SIBM Bangalore, I think after SIBM and SMCRT ये अच्छे कॉलेजेस हैं।
So SIOM Nasik, you can consider if you want to do an MBA in operations. Otherwise, there is no point in applying for that college because it is exclusively for operations only. So if you are clear कि आपको operations करना है तो आप SIOM से कर सकते हैं. Kirti has done her MBA from there. Yeah. So Kirti, कुछ बोलोगे इसके बारे में? And at 96.75 percentile, I think हाँ. SIIB, you have a good chance to apply for SIIB. I don't know why you have mentioned that I've missed नो, आई थिंक वो SIIB. And डेट्स पार हो गए होंगे. कीर्ति, वो डेट्स पार हो गए oh, होंगे. अच्छा, अप्लाई oh, करने के डेट्स she होते हैं didn't ना. fill the form. हाँ. Okay, okay. हाँ, शी डिडंट फिल द फॉर्म ऑन टाइम Oh, प्रोबेबली. is it? Okay. So हाँ. I think then, मतलब देखो, it's all about which stream you want to pursue your MBA in. अगर आपको operations में करना है तो आप जा सकते हैं. Operations management के लिए SIM Nashik is worth going for, but then you will also have to check the ROI of those colleges. मतलब अगर if you are investing so much in the fees, if you are sure enough कि your interest area is quite well aligned with it, then go for it, because उसमें फिर आप top 10% में आप expect कर सकते हैं, आप पूरे क्राउड में से आप top 10 या 15% में आ रहे हैं, तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है. You can expect that, but you can never say on what will happen in the placement. Um, but unless and until you are not so clear, I think you can opt for giving exam for like once more, because I think apart from this, अगर आपका इंटरेस्ट एरिया अलाइंड ही नहीं है तो फिर ये, क्योंकि काफी सारे स्पेसिफिक कॉलेजेस भी हैं, लाइक SSBF इज फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस ओनली. तो अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो फिर आप उसमें जाएंगे. अगर SIHS, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, इट्स अबाउट हेल्थ साइंसेज, तो हेल्थ साइंसेज में आपका इंटरेस्ट है, आप काफी मतलब विविड एरियाज, नीश मतलब है, बहुत बहुत ही, नीश कोर्सेस है. हाँ, बहुत नीश कोर्सेज हैं और ये अलग 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 एरियाज से हैं. तो आई थिंक यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको ऑपरेशंस करना है कि बैंकिंग फाइनेंस करना है कि हेल्थ साइंसेज करना है. तो आप एक पहले उसमें क्लैरिटी लीजिए, और फिर अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप कॉलेजेस उसके हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं. आई थिंक विथ 96.75 परसेंटाइल अगर आपको ऑपरेशंस करना है तो आप SIOM नासिक कर सकते हो. बट अगर आप 96 इज अ वेरी गुड परसेंटाइल, या मतलब इट्स अ गुड आपका परसेंटाइल. पोटेंशियल या काफी. हाँ, इट्स अ गुड स्कोर. आई डोंट नो वेदर यू हैव गिवन कैट और नॉट, और यू हैव गॉट अ डिसेंट परसेंटाइल. आई थिंक यू कैन अप्लाई फॉर कैट बेस्ड कॉलेजेस ऑल्सो. अगर आपका 90 के आसपास आया है तो काफी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं कैट में भी 90 में. या तो बट आई फील कि मतलब SIBM नागपुर, SSBF पुणे, फॉर द स्कोर दैट यू हैव गॉट विल नॉट बी वर्थ इट. That's what I feel. So I don't know if these colleges do open up with their forms, reopen their forms. You can try. आपका स्कोर तो बहुत हाँ, अच्छा है, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी ले लीजिए बस. इफ because you यू don't आर want to regret एक्चुअली, doing an MBA in health sciences and all एग्जैक्टली. later बाद में. हम्म. Okay. Okay. So Shivam Sharma is asking, sir got 99.8 percentile in SNAP. Profile is 78, 89. तो ये भी लिखेगा. नहीं यार, इतना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा. मोस्टली आप SIBM पुणे तो आई एम अज्यूमिंग कि आप निकाल लोगे, क्योंकि 50% वेटेज एट द एंड ऑफ इट ऑल स्नैप का ही होता है. एंड यू हैव गॉट अ वेरी गुड परसेंटाइल 99.8. वेरी गुड चांस. तो 78, 89, 67 फेयरली ओके है, डिसेंट है, अच्छी प्रोफाइल है आपकी, तो इतना कुछ इशू नहीं होगा. तो जस्ट गो फॉर इट. व्हाट आर द कट ऑफ्स फॉर SIBM पुणे एंड SMHRD फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स? यार ये जो दूसरे वाले, ये कोटा वाले जो कट ऑफ्स है यार, उसका मेरे को एक बार देखना पड़ेगा डेटा. आई एम नॉट टू श्योर क्या डेटा रहता है, बट आई थिंक इट इज इन व्हाट 89 या 90 के आसपास रहता है. आई एम नॉट टू श्योर, आई नीड टू चेक दैट. So I'll just check it and get back to you on this. I'm not too sure. Kirman is asking 35 percentile PWD, any chance for any Symbiosis Institute? यार with 35 percentile I feel कि आपको एक बार फिर से repeat करना चाहिए. To be very honest, don't go for any Tom, Dick and Harry B school. Don't go for it, because at the end of it all उसका अगर आपका ROI नहीं बैठेगा 35 में, आपको Symbiosis में मतलब नहीं मिलेगा. मतलब मिलेगा तो भी बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा. So that is what I would like to say. So any how to prepare for GDPI? I think we have covered this question already. GDPI के rounds, GDPI किस तरीके से prepare करना है. The important matter is कि do well. Make a list of all probable questions. Make a list of all probable questions that you can ask, that the interviewer can ask you. Okay, and go. So it's like that. Don't go unprepared at all. Don't think कि हाँ मैं expert हूँ, मैं कर लूँगा answer. Trust me, even guys with after 10, 15 years of experience also prepare answers to the questions, because obviously there is a science to it, right? You have to appear confident, and आपको दिखाना है कि आपने prepare किया है. Preparation goes a long way.
So do go ahead and go ahead for it. Go for it. I think we got disconnected. Hello? Yeah. Uh, Yeah, 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 you am I got audible? disconnected, I think. Yeah, yeah, you're back, you're Okay, back. okay, yeah. Yeah. भाई यू गाइस तो कपल थे ना तो अलग-अलग क्यों? अलग-अलग रूम में तो बैठ ही सकते हैं ना यार। ठीक है। सो कीरमन ओके सीक्रेट ओके नाउ यू गाइस आर हैविंग फन नाउ। बढ़िया है, बढ़िया है। चलो नाइस। अच्छा आप लोग सर हाउ मच इज़ द कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटेड? स्नैप स्कोर इज़ कैलकुलेटेड आउट ऑफ 50 देन जीपीआई 50 सो टोटल इज़ आउट ऑफ 100 राइट? करेक्ट, यही होता है। तो सर्टेन कॉलेजेस हैव वेटेजेस, सो 50% वेटेजेस टू योर स्नैप स्कोर, देन सर्टेन कॉलेजेस हैव वेटेज फॉर योर जीडीपी अराउंड का पूरा 50 होता है। 50 में से भी आई थिंक मेजॉरिटी स्नैप स्कोर का ही होता है। एंड में कंपोजिट स्कोर आई थिंक 50 का बनता है। तो 50 में से मैक्सिमम वेटेज 50% वेटेज इज ऑन द स्नैप स्कोर फॉर मोस्ट एमबीए कॉलेजेस इन सिम्बायोसिस फ्रेटर्निटी। उसमें फिर कुछ कॉलेजेस का 10% हो सकता है जीडीपीआई में, कुछ कॉलेजेस इंटरव्यू का वेटेज ज़्यादा देती है, 40% देती है, 30% देती है एंड रिटन एबिलिटी का 10% होता है। तो जीडी एंड रिटन एबिलिटी का थोड़ा कम होता है 10-10%, बट इंटरव्यू का काफ़ी हेवी वेटेज होता है 30 to 40%। सो इंटरव्यू इज़ वेयर यू हैव टू रियली रियली प्रिपेयर वेरी वेल। सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि कैसे होता है सिम्बायोसिस में, तो आई विल जस्ट लेट यू नो। तो सिम्बायोसिस में क्या होता है, इंटरव्यू कौन लेता है सबसे पहले? एक देखो पैनल, पूरी पैनल बैठती है, ठीक है? तो एक बंदा बैठता है आपका कॉलेज का प्रोफेसर, कॉलेज का कोई भी प्रोफेसर हो सकता है, कोई सीनियर प्रोफेसर हो सकता है एंड एक बंदा कोई एलुमनाई होता है कॉलेज का, जो कि 15-20 इयर्स का एक्सपीरियंस्ड एलुमनाई होता है। उनको कॉलेज इनवाइट करते हैं टू अटेंड दीज़ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन। तो एक एलुम बैठता है एंड एक फैकल्टी मेंबर बैठता है। तो ऐसा होता है ना कि एक बंदा आपकी एकेडमिक नॉलेज चेक करेगा, एक आपका थोड़ा पर्सनैलिटी चेक करने की कोशिश करेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके आंसर्स में कितना दम है एंड आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप फिजेट तो नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं इधर-उधर तो नहीं जा रहा है। तो ऑल दीज़ स्मॉल स्मॉल थिंग्स विल मैटर अ लॉट। So do give lots of mock interviews before like appearing for the actual process. So that is what I wanted to say to all of you. So, sir, every person says corporate life is not good for girls. So many news coming from this time. How can a girl tackle this problem? Please reply, ma'am, because I'm married. So, Kirti, this question is clearly for you. That's for you. How I can Okay. my husband. Yeah, you Corporate can life is read. not good for girls. Okay. आई थिंक दिस इज़ एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव। आई डोंट नो किसी के साथ में कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है तो, बट इट्स क्वाइट सेफ इफ यू आर इनटू अ गुड काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। देयर आर कंपनीज़ जिनका एनवायरनमेंट थोड़ा अलग होता है, बट देयर आर फ्यू गुड फर्म्स एज़ वेल जहाँ पे, और डेफिनिटली एचआर तो होते ही हैं हर ऑर्गनाइजेशन में। सो एनी व्हिच वेज़, मतलब आपको, आप वर्किंग आवर्स के सेंस में बात कर रहे हैं नॉट गुड फॉर गर्ल्स, या फिर आप एग्ज़ैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं? मेनी न्यूज़ फ्रॉम दिस टाइम, कमिंग फ्रॉम दिस टाइम, हाउ मेनी गर्ल्स, व्हिच न्यूज़ आर यू टॉकिंग? आई मीन, आई डिडन्ट गेट दैट, हाउ आई कन्विंस माय हस्बैंड। सो मतलब शी इज इफ आस्किंग यू कि गर्ल्स के लिए कॉर्पोरेट में काम करना लाइक इज इट टू मच प्रेशर या कर सकते हैं या नहीं, मतलब ऐसा कैसे मतलब? see, it's not, it's about you. I mean, how you can handle the pressure, and there are certain times when you have to say no। मतलब अगर आपके पास में, if you are overloaded with work and अगर आपके ऊपर और डाले जा रहे हैं, तो you have to say कि नहीं हो सकता इतना इतना। और obviously वो समझेगी भी, and that's मतलब obviously हर बार आप no नहीं बोल सकते हैं हर चीज़ को, and timing is also not an issue मतलब for girls also। It's quite आई थिंक सब्जेक्टिव व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट। और न्यूज़ वगैरह में तो ऐसे तो बहुत सारी न्यूज़ चलती रहती है। तो आप न्यूज़ में कुछ भी आ रहा है तो उसके हिसाब से आप सोच लेंगे कि ये इट्स नॉट, इट्स आप पूरा एक स्टीरियोटाइप नहीं बना सकते इस चीज़ को। तो आई थिंक यू, इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड एवरी, आई थिंक आज तो आजकल तो हर एक को काम करना ही चाहिए, बी इट गर्ल और अ बॉय। इट्स इट्स द नीड ऑफ द आवर, एंड यू विल हैव टू वर्क एंड अर्न, एंड मतलब इन फैक्ट गर्ल्स को तो अर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको डेफिनिटली यू शुड गो फॉर इट। एंड आई थिंक अगर आपको और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो पूछिए, लेकिन इसके बारे में तो मैं बोलूँगी इट्स नॉट करेक्ट, इट्स नॉट सेफ फॉर गर्ल्स। देयर आर अदर पॉलिसीज़ आल्सो। अगर आप
उससे एक्सट्रीम बात करें तो पॉश जैसे पॉलिसीज़ भी होती हैं, अगर वो आप सेफ नहीं फ़ील कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो एचआर हैज़ द सॉल्यूशन फॉर इट। मतलब हर एक के लिए एक गाइडलाइंस है, अपने ऑफ़िसेज़ में भी सब लोग अपने सेट डेकोरम में ही रहते हैं, एंड इट्स नॉट करेक्ट टू से दैट इट्स नॉट गुड फॉर गर्ल्स। या तो ऑल इन ऑल कि मतलब कर सक काम डेफिनिटली लड़का हो या लड़की हो, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द जेंडर वेदर यू लाइक वर्क और नॉट, ओके। हुँ, तो द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि जॉब टाइप्स होते हैं, मैनेजर के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड ओवरऑल कंपनी का कल्चर भी कैसा है। अगर आप एक ऐसी कंपनी पे हैं जहाँ कल्चर बहुत इंक्लूसिव है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर और व्हाटएवर हुँ, डिफरेंसेस, so you should be fine, you should be safe. That because there are lakhs and lakhs of girls who are pursuing careers and like becoming CEOs and CXOs and CHROs. So girls हुँ, are also doing as good as boys. So like या वो ज़माना आ गया है वो टक्कर वाला। राइट। So I एंड don't know। आईटी सेक्टर काफ़ी हाँ, सेफ है, आईटी सेक्टर और कंसल्टिंग वगैरह इन सब रिलेटेड जॉब्स में अगर आप जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हाँ, थोड़ा मैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रिलेटेड, एंड उसमें वो हायर भी नहीं करते हैं गर्ल्स को, तो वो हुँ। आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जैसे कि एकदम एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, कोर मैन्युफैक्चरिंग लोग हैं, तो वहाँ पे थोड़ा हो सकता है इश्यूज़, बट आई डोंट थिंक दे हायर गर्ल्स इन दोज़ काइंड ऑफ रोल्स एज़ वेल, so दैट्स नॉट एन इश्यू। So okay, so I'll take the next question, ठीक है? Rakesh श्योर। is asking, sir, my uncle's daughter has completed from ISB Hyderabad. She is working in BCG currently. She's saying that only 999 I have profile of 776. She's saying you will not get shortlisted in company. यार अब ये डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। अगर आप खुद अगर आईएसबी में आप जा रहे हो और आपका 776 है तो क्यों नहीं आएगा आपका शॉर्टलिस्ट यार? इट इज़ आईएसबी फॉर हेवन्स सेक। डेफिनिटली आपको कॉल आएगा। ठीक है, some companies BCG may not shortlist you, McKinsey may not shortlist you, but then there are 250 other companies that are coming on campus, right? कोई ना कोई तो आपको जॉब देगा ही, right? And the job offer at ISB will be like definitely upwards of 20 lakhs or so. So I don't see any reason. 776 is still a fairly good. अगर 555 बोलते तो मैं समझता कि हाँ बहुत ही खराब प्रोफाइल है, but 776 is still a decent, fairly fine profile as per me. और Sarabjot is asking 68 SC कैटेगरी कॉल फॉर एसआई यार एक बार चेक करना पड़ेगा। आई थिंक इट इज सेफ 68 में कॉल आ जाना चाहिए बट आई हैव टू चेक यार आई कैन नॉट से विद कन्विक्शन ओवर हियर। एंड प्रांजल इज आस्किंग 76 and a half percentile मैकेनिकल इंजीनियर कैन आई गेट SIOM नाशिक और SIDTM और SCIT एंड वो कितनी क्या मिल सकता है क्या 76.5 में सीओम का कॉल आता है क्या होगा आई आई एम नॉट श्योर। थिंक थोड़ा टफ रहेगा, 76 परसेंटाइल इफ यू आर गोइंग फॉर ऑपरेशंस। एसआईएम हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड देयर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट रोल आल्सो, मतलब वो स्ट्रीम में भी, तो उसमें चांसेस हैं, लेकिन फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट इट वुड बी टफ। क्या व्हाट इज द मिनिमम परसेंटाइल फॉर सीओम अभी के डेट पे गई थी? 83, 85 plus, I think I have डिपेंड आई shared a थिंक। list. Yeah, yeah, 87 plus. In fact, I saw that from the last few years' data. So 87 plus was the cutoff. But you can just go and refer to the Excel sheet. I have shared it in the description. I've actually made a video on Symbiosis colleges, and उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक शेयर किया जहाँ पे मैंने ये एक्सेल शीट शेयर किया जिसमें सारे सिम्बी के कॉलेजेस हैं और उसके कट ऑफ परसेंटाइल्स हैं। बट जस्ट डोंट रिलाई ऑन दैट कि आपका उसके साथ में मैच करेगा, तो दिस इज़ बेस्ड ऑन पास्ट ईयर्स डेटा एंड थोड़ा बहुत उसके बेसिस पे है। And I think Amol has also created a similar kind of a video on his channel as well, जो सिम्बायोसिस कॉलेजेस को टारगेट करता है एंड सारे कॉलेजेस का कट ऑफ एंड एवरीथिंग बता रहा है। तो यू कैन रेफर टू दैट। SIDTM एंड SCIT, पहले तो आप मैं वही बोल रही हूँ, जो SIOM, SIDTM, SCIT है ना, ये सारे नीश कॉलेजेस हैं जो अलग-अलग स्ट्रीम्स में आपको डिग्री प्रोवाइड करते हैं। तो आप कौन से में करना चाहते हैं? आप ऑपरेशंस में करना चाहते हैं, आप डिजिटल टेलीकॉम मैनेजमेंट में करना चाहते हैं, आप आईटी में करना चाहते हैं। तो वो भी आप थोड़ा क्लैरिटी रखिए, एंड उसके बेसिस पे आप फिर कि जस्ट एमबीए करना ही है ऐसे नहीं सोच के करिए, क्योंकि आप एक बार इस कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसमें मतलब मार्केटिंग, एचआर, बाकी के ऑप्शंस है ही नहीं, फाइनेंस। तो इन केस अगर आपको उसमें इंटरेस्ट था, तो आप फिर उसमें नहीं जा पाएँगे, क्योंकि उनपे ऑप्शंस ही नहीं होते हैं। तो मतलब और होते भी हैं तो दोज़ आर नॉट मतलब वो उसके लिए पूरे स्पेशलाइज़्ड कॉलेजेस नहीं है मतलब। तो आपको उसके हिसाब से एक कॉल लेना पड़ेगा। आई थिंक एससीआईटी का मैंने देखा था 76 था मतलब परसेंटाइल, तो जस्ट आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं उसका। बट एससीआईटी आ सकता है कॉल, हाँ। हाँ, एससीआईटी आ सकता है। एससीआईटी, एसआईआईबी, एससीएमएचआरडी सब सेम कैंपस में ही होता है फॉर पीपल हू डोंट नो। हाँ, लवाले कैंपस। यस। नहीं, नहीं लवाले नहीं है, दिस इज़ इन हिंजावाड़ी। ओके, ओके। हाँ, हाँ। एससीआईटी एंड हाँ, एससीआईटी इज़ इन लवाले, एससीआईटी राइट?
नो, 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 एससीआईटी इज़ इन हिंजेवाड़ी, मेरे साथ ही है ओके, मतलब ओके, सेम एससीएमएचआरडी, एसआईआईबी एंड एससीआईटी का एक ही कैंपस है। ओके, मतलब एक ओके, ही बिल्डिंग में ऊपर 4 फ्लोर में एससीएमएचआरडी क्लास होती है, नीचे के 3 फ्लोर में एसआईडी क्लास होती है, ऐसा होता है। ओके। सो दिस इज़ अ ट्रिविया फॉर दोज़ हू डोंट नो, हू डज़ नॉट नो दिस। सेम ही कैंपस है। हाँ, तो एज़ पर कैलकुलेशन अ 98 परसेंटाइलर scores नहीं क्या I speak as per calculation 98.5% scores 3 more marks than 99.5% in GPI. Gets selected because of very less snap score difference. हाँ, पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल क्योंकि स्नैप का वेटेज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, राइट? देन यू व्हाट मिस सॉरी you missed my question. I think we answered your question, Vijay. That was asked from Vijay's handle. Then TechM, what are your reviews of IFMR Chennai? My NMAT is 233. Should I apply it and is it worth joining? I think NMAT 233 तो अच्छा स्कोर है यार, आपको तो नासिर मुंजे का भी कॉल आना चाहिए मुंबई का विद दिस स्कोर 233 का। But IFMR Chennai, yeah, I need to see that. I have heard it's a decent college. I'm not too sure what is the average placement, what is the ROI and all. I need to check that. So, uh, Prithvish, अच्छा Prithvish Dastidar is asking, ma'am got 95 percentile, which college among COM, SIBM, SIB? Please. Yeah, okay. First of all, congratulations, 95 percentile is also a good score. But हाँ, आप you missed out on the first two colleges, top two colleges, SIBM Pune and SCMHRD. But yeah, 95 percentile में देखो OM is specifically operations में जैसे बोलते आ रही हूँ, operations management के लिए है. It's a very good college, I would say. 100% placements भी होते हैं. लेकिन अगर आपको operations में इंटरेस्ट है तभी जाना क्योंकि उसमें और कोई स्ट्रीम नहीं दी होगी. हाँ, डेफ़िनेटली उसमें आप एक वो मतलब आप एक अलग इलेक्टिव जैसे चूज़ कर सकते हैं इन द सेकंड ईयर कि आप थोड़ा-सा उसमें नॉलेज गेन कर सकते हैं, बट दैट वोंट बी काउंटेड एज़ योर स्पेशलाइज़ेशन, राइट? तो ऑपरेशंस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो एसआईएम इज़ द बेस्ट। आई थिंक एसआईबीएम बेंगलुरु इज़ आल्सो अ गुड कॉलेज फॉर ऑपरेशंस एज़ वेल। Operations. उसमें हाँ, उसमें काफ़ी अच्छा आई थिंक पैकेजेज़ भी ऑफ़र करता है। दोनों का एवरेज पैकेज इज़ अराउंड 12 टू 13 लाख पर एनम का एक एवरेज पैकेज देखा गया है। दैट टू बेसिस द लास्ट फ्यू इयर्स डेटा आई एम सेइंग। इट डज़न्ट मीन कि आपको नेक्स्ट ईयर आप जब ग्रेजुएट होंगे, आप 2 साल बाद ग्रेजुएट होंगे, राइट? तो उसमें उस टाइम पे भी सेम रहेगा। आप एक्सपेक्टेशंस वैसे मत रख के जाइए, लेकिन हाँ ये लास्ट फ्यू इयर्स के डेटा पे है एंड एसआईआईबी स्पेसिफिकली फॉर इंटरनेशनल बिज़नेस एंड अगर आपको मार्केटिंग या ऐसे स्ट्रीम्स हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। इवन SIBM Bengaluru मार्केटिंग एंड बिज़नेस एनालिटिक्स में भी काफ़ी अच्छा है। सो यू कैन टेक अ कॉल बेसिस व्हिच स्ट्रीम यू वुड वांट टू स्पेशलाइज़ इनटू। तो उस पे कॉल लीजिए। बाकी तीनों कॉलेजेस आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल इक्वल आई वुड से। कुछ ऊपर-नीचे 19-20 होगा तो आई थिंक उसमें दैट वोंट मैटर मच। इफ यू आर अमॉन्ग्स्ट मतलब 10-15% ऑफ द क्राउड आप कोई भी कॉलेज में अच्छा ही एक प्लेसमेंट खुद के लिए सिक्योर कर पाएँगे, राइट? तो बेसिकली मार्केटिंग, अगर आपको मार्केटिंग अच्छा करना है तो आप एसआईबीएम बैंगलोर, एसआईबी देख सकते हो। बट अगर आप ऑपरेशंस हुँ, में हैं तो आप सीओम एंड एसआईबीएम हुँ, बैंगलोर दोनों में से आप इवैल्यूएट करके देके जा सकते हो। यू कैन स्पीक टू सम एल वो आल्सो एलम्स आल्सो एसआईबीएम बैंगलोर के टू हाँ। अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि एसआईओएम पूरा एक नीश कॉलेज है, सिर्फ ऑपरेशंस का ही कोर्स है वो। हुँ, तो हुँ। राइट। लिंक्डइन पे कुछ कनेक्शंस बना लीजिए। मैं तो बोलूँगी कि अगर उस कॉलेजेस के मिलते हैं ना, तो थोड़ा बहुत उनसे बात करिए या फिर एसआईबीएम के बारे में मैं बोल रही हूँ, एसआईबीएम बेंगलुरु एंड एसआईआईबी। तो इट वुड बी गुड। Lazy boy is asking, I am skeptical about SIBM. How is the college? Got 99.3, but no good calls, not even from SPJM. यार 99.3 कैट की बात कर रहे हो ना? तो यू आर कनेक्टिंग एसआईबीएम विद एसपीजेएन, जिसका दोनों का एग्ज़ाम्स ही अलग है। अगर 99.3 में एसपीजेएन नहीं आया तो और भी बहुत कॉलेजेस है, कुछ तो आएगा, बहुत कॉलेज है। 99 तो इज़ अ ब्रिलियंट परसेंटाइल। एमडीआई वगैरह सब आएगा आपको कॉल। लेज़ी बॉय अगेन, न्यू आईएम्स वर्सेस एसआईबीएम, एससीएमएचआरडी। यार देखिए, अगर इनमें ऑप्शन मिले तो मैं तो मेरे हिसाब से एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, यू शुड चूज़ एसआईबीएम पुणे फर्स्ट। एंड एसएमएचआरडी इज़ प्रीटी मच एट पार विथ कुछ न्यू आईएम्स, तो आप इसमें आपको कॉल लेना पड़ेगा। एक्चुअली एसएमएचआरडी एंड एसआईबीएम का ये है कि थोड़े पुराने कॉलेजेस है, कम से कम एसआईबीएम तो आई थिंक 35 इयर्स ओल्ड कॉलेज है, एसएमएचआरडी आल्सो इज़ 25 प्लस इयर्स ओल्ड कॉलेज नाउ। तो एलुमनाई का बेस अच्छा है एंड न्यू आईएम्स अगर आप देखें तो कुछ आईएम्स 10-12 साल पुराने हो चुके हैं।
तो उनका भी अच्छा बेस है। अब डिपेंड करता है आपको क्या जाना है। मोर और लेस आई वुड से कि आईआईएम्स में भी उदयपुर, रायपुर एंड त्रिची आईआईएम्स, न्यू आईआईएम्स में थोड़ा बेटर है एज़ कम्पेयर्ड टू अदर्स। बट आई थिंक बाकी इज़ एट पार एसएमएचआरडी के। तो आप अपना कॉल ले सकते हो तो डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर अदर पैरामीटर्स दैट यू मे हैव। So Rakesh, so my aim is to get into top 20 maybe college with my profile 776 create a problem in admission। नहीं यार, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। पहले आप पहले बताइए कि आपका कैट में स्कोर आया है क्या? एंड स्नैप में स्कोर आया है, एनवैट में कुछ स्कोर आया है? आपने एग्जाम दिया है कि आप सिर्फ 776 को लेके टेंशन में बैठे हुए हो? ये पहले क्लैरिफाई करो। आपने एक बार भी एग्जाम दिया है क्या राकेश? एक बार बताइए सच में। पढ़ाई की है, 8-10 महीने पढ़ाई की है एग्ज़ाम प्रिपेयर करने की। ये सब चीज़ों के बारे में सोच के क्या फ़ायदा होगा यार, कि 776 यार 555 वालों की भी बहुत तगड़े प्लेसमेंट लगती है, लेकिन आप पहले जाओ तो सही उस कॉलेज में, उस कॉलेज के लायक तो बनो पहले। ओके, सो IFMR Chennai shows 13 lakhs average with 16 lakh fees. What will be in hand for 13 lakh? Please tell me, will I be able to pay the loan? यार 13 लैक्स का अब मैं ऐसे तो कोई फिक्स्ड रूल थोड़ी है कि 13 लैक्स का इतना इन हैंड होता है। अब किसी को पता ही नहीं उसका ब्रेकअप क्या है, फिक्स वाला कंपोनेंट क्या है, वेरिएबल कंपोनेंट कितना है। अगर 9 लाख आपका फिक्स्ड कंपोनेंट आ रहा है 13 लाख पर एनम है, तो आपका आ जाएगा 60-70,000 रुपीज़ इन हैंड। एंड अगर आपका 13 का 13 अगर फिक्स्ड है, तो आपका ऑलमोस्ट क्लोज टू 90,000 95,000 आएगा। डिपेंड्स, बहुत सारे हो सकता है इसमें। अगर आपका जॉइनिंग बोनस भी है 2 लाख वन टाइम, तो और कम आएगा। तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि कितना पैकेज आएगा, बट सेफली अज़्यूम कर लो कि 65-70 हज़ार तो आ जाएँगे 13 लैक्स के आसपास में आपका इन और ये हैंड। जो एवरेज लिखा रहता है ना, वो थोड़े से आई थिंक इन्फ्लेटेड हाँ, नंबर्स भी उसको होते पिंच ऑफ हैं एंड सॉल्ट प्लस के साथ लो यार। हाँ, 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 हाँ। राइट। एंड ऑल्सो यू नीड टू चेक द मीडियन पैकेज वो जो हर बार मतलब हम लोग गलती कर लेते हैं कि एवरेज पैकेज देखते हैं बट हमें मीडियन भी देखना चाहिए। हुँ। एंड ये थोड़े इन्फ्लेटेड नंबर्स भी हो सकते हैं। क्योंकि कॉलेजेस अपनी मैंने साइड एक पे जो हाँ, डालेंगे वो थंब अपने रूल आप समझ लो। 75 टू 80% आप एवरेज समझ लो। अगर किसी कॉलेज में 25 लाख दिखा रहा है, तो समझ लो कि उसका पे एवरेज पैकेज 19-20 लाख के आसपास होगा। समझ गए? तो दैट इज़ द थंब रूल दैट यू शुड गो अबाउट। एंड जैसे-जैसे नीचे कॉलेजेस की रैंक और नीचे जाती है, आप अज़्यूम करो कि वो गैप डेल्टा का और बढ़ेगा। अगर वो 16 लाख 17 लाख एवरेज दिखा रहे हैं, तो उनका एवरेज एक्चुअली में 12-13 ही होगा। वो कुछ बच्चे होंगे डेफिनिटली जिनको 25-26 लाख का पैकेज मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको 6, 5, 4 का भी लगेगा। तो वो भी एक रियलिटी है। वैसा कोई बताएगा नहीं, कोई रेंज नहीं बताता है, हमेशा सिर्फ एवरेज बताता है। एंड आप नोटिस करोगे, टॉप 10% बताता है, टॉप 20% बताता है, टॉप 25%, टॉप 40%। अब टॉप का देखोगे तो फिर वो स्क्यू होगा ही ना अच्छे पैकेज की तरफ। किसी ने ऐसा बताया बॉटम 20% का कितना लगा है, बॉटम 20% निकालो। ये तो भी अगर 300 का बैच साइज़ है, बॉटम 20% मतलब लगभग 60 बच्चे हो गए। बॉटम 20% निकालोगे तो एवरेज पैकेज लगभग अराउंड 7-8 लाख रुपए आएगा। कोई ऐसा बताएगा क्या आपको कि 60 300 में से 60 बच्चे, सब जिनका अच्छा परसेंटाइल आया था, उनका 7-8 लाख का पैकेज लगा। कोई ऐसे मार्केटिंग करता है क्या? नहीं ना। हर बंदा, हर कॉलेज अपना बेस्ट दिखाना चाहता है। सो कीप दैट इन माइंड। सो मार्केटिंग सेल्स फन 99.82 percentile aiming for SIBM Pune, SMHRD currently at IFT Kakinada pursuing BBA। बीए, आई एम अ फ्रेशर, एनी टिप्स फॉर जीपीआई? यार दोनों का कॉल आ जाएगा आपको, एसआईबीएम एंड एससीएमएचआरडी का। कांग्रेचुलेशंस। तो जीडीपीआई के टिप्स यार हमने दे दिए हैं। एक बार जब ये वीडियो लाइव होके चला जाएगा ना अपलोड, तो एक बार आप वो वीडियो देख लेना प्लीज। इट विल बी लाइक रिपीटिंग द क्वेश्चंस। वी वांट टू कवर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल प्लीज। जब ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा चैनल में, जो कि आज ही हो जाएगा, यू कैन जस्ट वॉच कि हमने क्या डिस्कस किया जीपीआई के बारे में। कैन एमबीए गिव 30x आरओआई इन 25 years? व्हाई नॉट? डेफिनेटली। डिपेंड्स ऑन हाउ यू ऐसा कोई रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है। बहुत सारे लोग के लिए नहीं आ पाता है वो आरओआई, बहुत सारे लोग के लिए 2-3 साल में वो आरओआई निकल आता है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम यार। ऐसा नहीं है कि आप आईआईएम अहमदाबाद, जो बंदा आईआईएम से भी पास आउट होके निकला है राइट, उसको भी काम करना पड़ेगा। जो मैकिंसी में काम करते हैं ये लोग, बीसीजी में काम करते हैं, आईबी में काम करते हैं, क्या लगता है आपको ये मजे में इनके 30 हजार की पैकेज लगी हुई है? दिन भर 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लगे रहते हैं ये लोग काम करने के लिए। देयर इज नो सच थिंग एज फ्रीलांस। अगर कंपनी पैसा दे रही है तो एक्सपेक्ट करो कि आप काम करोगे। इट्स नॉट दैट ईज़ी, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईज़ी एट ऑल। So sorry to be very blatant and upfront, but that is the reality. I think Kirti will also agree in this. ट्रू, ट्रू। यू स्लॉग मोर तो आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है तो फिर वो वर्क लाइफ क्या रहेगा ना मतलब, ठीक है, कर रहे हैं सब लोग, मिल तो जाएगा ही।
नथिंग इज़ बीइंग सेड इन दिस लाइव एक्सेप्ट द हॉरिफिक ट्रुथ। तो गाइज़ यही है, मतलब वी वांट टू शो यू द रियलिटी ओनली। अब कॉलेज हुँ, के प्लेसमेंट फिगर्स तो आपको दिखा रहे हैं, 40 लाख का पैकेज, 30 लाख का पैकेज, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ वी हैव कम आउट फ्रॉम दैट वेरी प्रोसेस, राइट? सो वी वांट टू शो यू व्हाट्स द एक्चुअल रियलिटी। एंड लाइक अभी भी हम 4-5 साल, हम लोग एमबीए ग्रेजुएट हुए, हम लोग को 4-5 साल हो गया, वी आर वर्किंग एंड या लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। मतलब जब आप खुद आओगे कंपनी में, तो क्या कंपनी में जॉब करने के लिए, तो यू विल योरसेल्फ लर्न हाउ थिंग्स वर आर डिफरेंट। जो आप सोचते हो कॉलेज जॉइन करने से पहले एंड जो एक्चुअल रियलिटी होती है, हाउ डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली आर। So, sir, SIBM Pune average package is 28, but my senior is saying 19 is median package. Why SIBM is inflating so much? यार again मतलब don't go for it. SIBM पुणे में 25 लाख का पैकेज, 27 लाख का पैकेज, इवन 31 32 लाख का पैकेज मिलता है। आई नो मिलता है 32 लाख का पैकेज, लेकिन कितने लोग को मिलता है? 1-2 लोगों 10 को। 15 20। हाँ, साढ़े तीन मतलब सौ का 300, हाँ, 300 के हाँ, बैच साइज में 15 20 को मिलेगा। ठीक है, लास्ट के कैटेगरी में 10 से 12 लाख का आसपास मिलेगा। मिड कैटेगरी में 16 टू 18, 15 टू 20 के आसपास रेंज में मिलेगा। सो ऐसे एनालिसिस करो एंड बल्क वाला जो लगेगा वो 15 टू 20 बल्क लगेगा। नीचे वाले के 9 10 11 12 लगेंगे और ऊपर वाले के 30 के ऊपर भी जाएंगे, तभी वो जाके एवरेज 27 26 दिखाते हैं, जो कि एक्चुअली में 19 तो आई थिंक थोड़ा कम है, 22 23 अज्यूम कर सकते हो। So, general engineer male with 99.75 in SNAP have 3 years work ex but 4 years due to government prep. What will be my challenges? Conversion ठीक है यार, इतना कुछ इशू नहीं होगा। SIBM पुणे या SMCRD आप कन्वर्ट कर लो, तो कुछ इशू नहीं होगा। अच्छा, 4 गैप ईयर्स लिखा है क्या? हैव 3 years वर्क एक्स बट 4 गैप ईयर्स ड्यू टू गवर्नमेंट जॉब प्रेप। तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आपका टाइमलाइन, थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। आप क्या 3 साल आपने काम किया, फिर 4 साल गैप भी लिया है आपने? सो यू विल बी प्रोबब्ली ओवर 30 राइट नाउ, विजय, लाइक एज़ फार एज़ माय कैलकुलेशन इज़ कंसर्न्ड, कि आप 29 या 30 के होंगे प्रोबब्ली, राइट? तो एज़ सच कुछ इश्यू नहीं होता है यार, क्योंकि देखो, मतलब मेरे बैच में भी एक 30-31 साल का लड़का था एंड मेरे जूनियर बैच में एक 34 इयर्स का लड़का था एंड ही आल्सो गॉट प्लेस्ड इन, आई थिंक ही गॉट प्लेस्ड इन विप्रो और सो विद अ डिसेंट पैकेज। तो ठीक है, इट्स नॉट लाइक इम्पॉसिबल। सो कीर्ति, किसी ने लिखा है, आई हैव मेल्ड यू रिगार्डिंग कॉलेज सिलेक्शन। तो ओके, एक बार ओके, देख के रिप्लाई कर देना। yeah, sure, Pritish. I'll reply to your mail. In case if you would want to ask it here also, it's okay. I'll answer your question. But yeah, definitely I'll reply to your mail. Okay, no worries. I'll check that and reply. Sure. Thank you for letting me know. बट 11 crores और 15 crores लाइफ टाइम इन हैंड इनकम इन इंडिया कॉर्पोरेट सही है? सही है यार, सही तो है, बट कितने लोग कमा पाते हैं 11-15 करोड़? लाइक हाँ ठीक है, ओवरऑल आप अगर आप 25 लाख कमा रहे हो, तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि 4 साल में आप 1 करोड़ कमा लिए। बट खर्चे भी तो होते हैं मेरे भाई। खर्चे नहीं करोगे क्या? खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, घूमोगे फिरोगे नहीं क्या? तो खर्चे भी तो होते हैं। अब आप किस तरीके से स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, तो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन दैट आल्सो। एंड आई डू वांट टू प्रमोट for good financial discipline and investments also through my channel, and you will see a lot more videos on like how to manage your money also after MBA, because that is also a topic which a lot many people educationists don't talk about, but is very important how you manage your money, because it ultimately boils down to that। कोई बंदा 17-18 लाख कमा रहा है, कोई बंदा 27-28 लाख कमा रहा है, बट देयर आर situations and scenarios where the guy who is earning maybe 20, 25, 30% lesser, but he is moving towards a better financial future because of his disciplined habits and his investment वाला जो हैबिट है, जो उसने कल्टिवेट किया हुआ है अपने लाइफस्टाइल में। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। So crazy 68, I have only new and baby IIMs and mid IITs. Which one to choose for the longer run? यार पहले आप जीडीपीआई कन्वर्ट कर लो, उसके बाद ही हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक यू शुड, अगर अगर मिड आईआईटीज है तो यू शुड गो फॉर न्यू आईआईएम्स, सो दैट विल गो आउट फॉर, दैट विल डू अ बेटर जस्टिस टू यू एंड योर प्रोफाइल। हाँ, बट उनका शायद थोड़ा फीस कम होता है आईआईटीज़ का। सो इन केस अगर आपका वो क्राइटेरिया है तो आप अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़, राइट? आई थिंक दैट्स व्हाट, राइट? Right. So, Sir Vijay, yeah, thanks for taking up my query. You, yes, I am 30. I did 2 stints in 2 PSPs. Acha, okay.
तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है। आई थिंक आप ही के टाइप का सिमिलर प्रोफाइल था जो मेरे कैंपस में आया था, कोई पीएसबी में ही काम किया था उसने, पब्लिक सेक्टर बैंक में। एंड उसने 6-7 साल काम किया हुआ था। बट इट्स ओके यार, इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई योर गैप ना, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन, इतना इश्यू नहीं होगा आई गेस। तो जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, पीपल लॉट मेनी पीपल इन देयर 30s डू फुल टाइम एमबीए, so that should not be an issue at all. So सर, हाउ टू कनेक्ट विद यू? यार आप कमेंट किसी भी चैनल में आप कमेंट कर सकते हो, मतलब I mostly reply to all the comments, so you can connect with me there. Then is SSPF Pune worth it? Are the jobs mostly given related into sales? I SSBF was या banking and checking my finance? list. हाँ, Hmm. I was checking the list which which we have shared with our viewers. So इसमें मतलब लाइक एसएसबीएफ जो पुणे है वो बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में है एंड 60 प्लस इसका जो है कट ऑफ परसेंटाइल था कुछ साल मतलब कुछ साल का डेटा इसमें दिया हुआ है. The ROI is not that great although it offers 100% placements but ROI इतना अच्छा नहीं है क्योंकि उनका पैकेज जो एवरेज पैकेज लग रहा है वो ओनली 10.5 का लग रहा है जबकि आप फीस Hmm. पे कर रहे हैं 18.2 की. So I think you will if you are so much like keen on getting into banking and finance sector then only go for SSBF and थोड़ा ROI में हिट लेना पड़ेगा. बट ओनली अगर आप करना चाहते हैं बहुत ईगरली एमबीए तो आप करिए नहीं तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट करिए एंड ट्राई फॉर बेटर कॉलेजेस. And he's asking whether most jobs are related to sales. तो जी हाँ दोस्तों, सेल्स की जॉब लगती है। So you get these jobs in these bankings and insurance companies where आपको business development का काम मिलता है. And those jobs are like, it's okay to have some experience, but then yeah, they are ruthless, pretty much ruthless, क्योंकि सेल्स के टारगेट्स होते हैं। एंड बैंकिंग जॉब्स आर लाइक जो रिटेल साइड में जो जॉब्स होती है जहाँ पे आपको सेल्स करना पड़ता है, एफडी की, रिकरिंग की, होम लोन्स की, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की, कार लोन्स की। सो दीज जॉब्स आर लिटिल बिट प्रेशर ओरिएंटेड, थोड़ा प्रेशर तो होता है। बट सेल्स है, आपको कोर फाइनेंस के जॉब्स तो मुश्किल से ही मिलेंगे, मोस्टली आपको सेल्स से ही मिलते हैं। एंड देन यू हैव टू वर्क योरसेल्फ, मे बी इंटर डिपार्टमेंट स्विच मार के अंदर काम करने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस लेके मे बी आप थोड़ा बेटर प्रोफाइल में जा सकते हो। तो 1.5 करोड़, 2 करोड़ सीटीसी पॉसिबल, 20 इयर्स एक्सपीरियंस, ये पैकेज कितना परसेंटाइल हो? यार ये सब क्वेश्चन लाइक इट्स लाइक आई डोंट लाइक आंसरिंग दीज़ क्वेश्चन्स क्योंकि ये लाइक इसके कोई सर-पैर नहीं होता है। लाइक हाउ मेनी पीपल फ्रॉम आई एम एबीसी आफ्टर 10-15 इयर्स आर मेकिंग 2 करोड़ टू 10? बहुत कम लोग होंगे। आई नो आप लोग मेरे को एग्री नहीं करोगे इस बात से, बट कम लोग होंगे, डेफिनिटली कम लोग होंगे। हर बंदा नहीं 2 करोड़ 3 करोड़ कमा रहा होता है, और हर बंदे की करियर का जो लाइफ स्पैन होता है वो ऐसा नहीं होता है। करेक्ट? कितने, अच्छा आप बताओ, आईआईएम अहमदाबाद कितना पुराना कॉलेज है? कम से कम 40-50 साल पुराना कॉलेज है, राइट? तो हर साल 400-500 बंदे निकलते हैं, कितने बच्चे निकल लिए होंगे? मैथ्स लगाओ एक बार। 500 इंटू 40 कितना होता है? 500 इंटू 40 करीबन 20,000 स्टूडेंट्स, ठीक है? सॉरी, 2 लाख स्टूडेंट्स। आईआईएम इतने सारे बंदे निकले, क्या सब सीईओ है क्या? इसमें अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, एमडीआई, एचआरए सब मिला लो, कितने सीईओज़ हैं? तो यार मतलब हर बंदे का वैसा नहीं होता है, लाइक सम पीपल जेन्युइनली डू वेल एंड आर एबल टू डू वेल इन देयर करियर्स बिकॉज़ दे आउट परफॉर्म, लेकिन सबकी सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। लाइक इट्स अ डिफरेंट जर्नी फॉर एवरीवन, राइट? तो ऐसा अज़्यूम करना बहुत बेकार है कि हर बंदा 1.5 करोड़ 2 करोड़ कमाएगा, मतलब ठीक है, some people may make that much of money, but some people may not even want to make that much of money because उनको नहीं चाहिए, maybe they want to prioritize other areas of their life. So it's a very subjective thing. बट डेफिनिटली अगर आप काम करोगे, इफ यू आर विलिंग टू टेक टू लाइक बैटल आउट द कॉर्पोरेट ग्राइंड, करना है काम आपको, तो डेफिनिटली आपका जा सकता है 1.5-2 करोड़ का पैकेज। एंड 1.5-2 करोड़ का पैकेज अगर आपका जा रहा है तो यू हैव टू बी अ वेरी सीनियर पोजीशन, मे बी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या डायरेक्टर या पार्टनर, इस लेवल में आपको होना पड़ेगा। एंड वर्किंग देयर इज नॉट ईजी। I don't want to give you false मतलब ऐसा, I don't want to demotivate you or something, but being very much realistic like with life, because हम बहुत ज़्यादा जब हम प्रिपरेशन फेज में होते हैं हम बहुत आइडियलिस्टिक सोचते हैं जनरली, कि अभी मेरी सैलरी 15 लाख है, 5 साल बाद 25 लाख होगी, 10 साल बाद 30 लाख होगी, 15 साल बाद 50 लाख होगी, उसके बाद 1 करोड़ होगी। ऐसे लाइफ एंड करियर ऐसे लीनियर नहीं चलता है यार, मतलब किसी लाइफ का भरोसा है क्या?
आज आपको कर रहा है मन ये करने का, कल आपको ये करने का मन नहीं करेगा। आई होप यू गाइज़ आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में कभी काम करके देखो, आपको रियलाइज़ होगा कि कल्चर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बंदा काम किया है टॉक्सिक एनवायरनमेंट में 2-3 साल, उससे पूछो दैट ही इज़ इवन विलिंग टू टेक 20 to 30% पे कट to get into a job profile that gives him satisfaction and gives him enough time to spend with his family and enjoy his personal time, maybe like indulge in some of his hobbies also. So, कीर्ति, आई थिंक तुम्हारा भी यही ओपिनियन होगा क्योंकि तुम भी या का या 7-8 साल काम कर चुके हो, राइट? हुँ। लाइक अभी मतलब इट डज़न्ट मेक सेंस टू आंसर दीज़ क्वेश्चन मतलब वो इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन कि हमारे क्या फैक्टर्स हैं, हमारा क्या बिलीफ सिस्टम है एंड व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज़ तो उसके बेसिस पे है ये एंड सब। थिंग्स चेंज यार, थिंग्स चेंज इन लाइफ। जो आप सोच रहे हो हुँ। आज, 4 साल बाद आपको कुछ और करने का मन करेगा। राइट। एंड आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में टाइम कम बचा है, सो यू विल ट्राई टू पुश टुवर्ड्स दैट, अदरवाइज़ इट्स अ हुँ। वेरी बोरिंग लाइफ। सोचो ना, इवन द 12-12 वैल्यू घंटे, ऑफ 14 मनी का हमें कोई आइडिया नहीं है कि आज ये वैल्यू ऑफ मनी इतना है तो कल को कितना होगा, राइट? तो अब तो एट द रिस्क ऑफ बीइंग फिलॉसॉफिकल, पैसा छोड़ के जाओगे क्या? कहाँ छोड़ के जाओगे? आई थिंक वी यहाँ कैन यहीं टेक पे अप छूट सम जाएगा। मोर। हाँ, हाँ, या वी कैन टेक अप क्वेश्चंस इजी। So I think let us take up two questions, three questions more, and then let us या श्योर। wrap up. Kirti, Shivam is asking one question. You can take it, I think. Sir, I have completed my graduation in 25 with gap year. Yeah, snap scored 95%. Should I take a drop for CAT exam or should I go for job? And sir, I have profile of. Hmm. आई थिंक शिवम हैड मेंशन्ड अर्लियर कि उनका 99 कुछ परसेंटाइल आया था, ऊपर ही कुछ कमेंट्स में लिखा था कहीं पे हम वी आंसर्ड ये अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर है। आई डोंट नो व्हाई इज़ ही आस्किंग 95 परसेंटाइल नाउ। मे बी कोई और शिवम होगा यार, आई शिवम थिंक सो, पता नहीं। नहीं आई सॉ हिज पोस्ट अर्लियर। अच्छा, या The same P76। Shivam is asking कि 95 परसेंटाइल आपका कितना स्कोर आया एक्चुअल में? इज़ इट 99.8 और इज़ इट 95 परसेंटाइल? अगर 95 परसेंटाइल है ना देखो यार ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, आपको जॉब करना है, इट्स इट्स योर पर्सनल कॉल आपको कितना आपका सिचुएशन क्या है, करंटली आप कहाँ हैं लाइफ में? आप आगे अपना कितना ईगरली आपको एमबीए करना है और एमबीए करने का रीज़न क्या है? ये सब चीज़ें आपको क्लैरिटी है तो आप थोड़ा सोच सकते हैं 95 परसेंटाइल पे आपको कॉलेजेस मिल जाएँगे एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको कॉलेजेस तो मिल ही जाएँगे। लेकिन हाँ, अगर आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है, इफ यू वांट टॉप एसआईबीएम पुणे या एससीएमएचआरडी वो आपको नहीं मिलेगा 95 परसेंटाइल पे। लेकिन 95 परसेंटाइल पे आपको बाकी के कॉलेजेस मिल जाएँगे, लेकिन आपको क्या करना है एमबीए या नहीं करना है वो आपका एक क्वेश्चन है एंड जो आपने स्कोर लिखा है 78, 89, 60 दैट ऑल कम्स सेकेंडरी। फर्स्ट यू हैव टू हैव द क्लैरिटी के क्या करना है आपको लाइफ में एंड यू कैन इज़िली गेट इंटो कॉलेजेस लाइक एसआईएम, एसआईआईबी, एसआईबीएम बेंगलुरु जैसे बाकी के लोग क्वेश्चंस पूछ ही चुके हैं। तो एट दिस परसेंटाइल इट्स गुड फॉर मतलब आपको थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए और यू कैन गो फॉर दीज़ कॉलेजेस बट यू नीड टू हैव सम क्लैरिटी फॉर दैट फर्स्ट। Correct. He's telling that my maths is also weak, which can be, हो सकता है यार। It is actually 20K, not 2 lakh, yeah, my bad, yeah, sorry. So मतलब मैसेज समझो यार, मतलब मैथ्स में क्यों ध्यान दे रहे हो यार? हो गया, टाइम हो गया, इससे मैं शादी का एग्ज़ाम दिए हो। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। Sandesh is asking, I scored 99.25 in Snap, which is great, but profile is not good. 966 after graduation, 5 years gap. But other option available to work in fintech with reference at 10 lakh, who want to choose MBA or job. हाँ, so that is a very good like थोड़ा डिलेमा वाला क्वेश्चन लग रहा है मेरे को भी। देखो, 5 साल का गैप में आपको थोड़ा तो डिफ़िकल्टी होगा, आपको जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा। आई डोंट नो कि आपने कुछ किया है कि नहीं इन 5 सालों में, अगर किया है तो यू कैन स्टिल जस्टिफ़ाई। कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ प्रूफ है, कुछ किया है तो यू कैन स्टिल जस्टिफ़ाई, बट 5 इयर्स इज़ अ बिग गैप। अगर आपका कुछ हेल्थ का कुछ इश्यू होगा या कुछ फैमिली कुछ इश्यू होगा, देन इट इज़ प्रोबब्ली जस्टिफाएबल, आप बता सकते हो, सो इट विल बी एक्सेप्टेड आल्सो। बट अगर आपने 5 साल कुछ भी नहीं किया है, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। एंड आपको 10 लैक्स का जॉब मिला है यहाँ पे, राइट? तो आप आरओआई थोड़ा लगा के देख सकते हो कि मतलब डू यू वांट टू स्पेंड 2 इयर्स, क्योंकि आपका स्कोर तो अच्छा है। इफ यू गिव योर इंटरव्यू वेल, यू कैन क्रैक एन एसआईबीएम पुणे और समथिंग, जहाँ से आपको 17 और एट मिनिमम 18-19 लैक्स की तो जॉब लगेगी कम से कम, बेयर मिनिमम, राइट? सो अब वो कॉल आपको लेना है। आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है मैं जानता नहीं हूँ,
कैसा है वो मैं जानता नहीं हूँ। ये सब कॉन्स्टेंट्स मेरे को पता नहीं है, तो वन्स यू लेट मी नो दोज़ आई विल बी इन अ मच बेटर पोज़ीशन टू आंसर दिस। बट मेरे हिसाब से एसआईबीएम पुणे अगर आपको मिल रहा है तो यू शुड गो फॉर इट। कुछ ना कुछ अच्छा जॉब तो आपको मिलेगा। एटलीस्ट बेटर देन व्हाट 10 लाख का जो जॉब है, द टाइप ऑफ रोल्स आल्सो दैट विल ओपन अप विल बी मच बेटर ऑफ। नो सर डिड नथिंग ओनली प्रेप फॉर गवर्नमेंट एग्जाम इन 5 इयर्स बट एज फैक्टर्स अगेंस्ट मी। यस। वही दिक्कत है ना यार संदेश, थोड़ा मतलब 5 साल आप लोग यार कैसे कर सकते हो यार, मतलब प्रिपरेशन गवर्नमेंट एग्ज़ाम की? एटलीस्ट कुछ तो जॉब कर लो यार, मतलब कुछ तो जॉब कर लेते। दिस कैन बी अ मैसेज फ्रॉम टू अदर पीपल आल्सो, लाइक इट कैन बी अ लर्निंग फ्रॉम संदेश दैट डोंट like keep preparing for exams, taking drops and preparing for exams. You will not go anywhere. You take up a job, it can be any job. Take up any damn sales job also यार, जो 10-15 हज़ार रुपए पे कर रहा है। कुछ तो सीखोगे, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होगा, एटलीस्ट थोड़े निडर बनोगे, मतलब यू विल बी एबल टू फेस पीपल विदाउट एनी फियर। पब्लिक स्पीकिंग का स्किल थोड़ा डेवलप होगा। यू लर्न हाउ टू स्पीक, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड स्किल टू हैव विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव राइट नाउ, राइट? तो दैट्स व्हाट। So Tushar is asking, I got 98.8 in Snap. Can you please guide where to prepare for GDPI? यार बहुत सारे कोचिंग्स ऐसे अवेलेबल है। आई डोंट थिंक कि मेरे को किसी का नेम लेना चाहिए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है। तो किसी में भी आप जाओगे ना तो वो अच्छा ही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। बट आपका खुद का प्रिपरेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल ऑफर। दे कैन ऑफर यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गो एंड प्रैक्टिस, बट एट द एंड ऑफ इट ऑल आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो, आप कैसे आंसर्स क्वेश्चन कर को फ्रेम कर रहे हो, दैट विल डिसाइड मच मोर कि आपका कैसा होगा। ठीक है? सो सो लेट मी टेक अ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ठीक है? किति विल जस्ट वाइंड अप श्योर। बिकॉज़ 1 या घंटा हो गया है एंड इट्स गेटिंग लेट हाँ, आल्सो। सो हमने आधे घंटे का टाइम नॉट दिया मेनी। था, बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ, हाँ। So I have done a job and Amity will become MBA from Amity online in Jan 26. What can I do now? यार look for a job भाई, why business? आपका आपका यूजर नेम ही है why business? Look for a job, try to make some money in a job, try to gain some experience and understand what your interests and where your interests lie, and then take a call accordingly. SC category 80.7, 38 marks. Can I expect calls? Yes, you can expect calls, but I need to check whether you can get a call from SIBM or SCMHRD or not because category के cutoffs मेरे mind में अभी नहीं है. So please bear with me. What is your salary? यार इतना सैलरी है कि घर चल जाता है, खाना पीना, थोड़ा बहुत ओकेजनल इधर उधर घूमना निकल जाता है। अब फिर आई वांट टू स्टार्ट माय बिज़नेस आफ्टर 2 टू 3 इयर्स ऑफ जॉब। ग्रेट, आप थोड़ा जॉब करो, पैसे इकट्ठे करो, अंडरस्टैंड और मैं ये बोलूँगा कि साथ जॉब के साथ-साथ थोड़ा एक्सप्लोर करो, क्या-क्या बिज़नेस करना है, बट देन डोंट स्ट्रेट अवे डाइव इंटू योर बिज़नेस। गेट अ जॉब, डू अ जॉब एंड साइड में थोड़ा-थोड़ा करो। लेट अस सी वेयर देन सी वेयर इट गोज़, ओके? दैट विल बी अ मच मोर बेटर अप्रोच। कीर्ति, दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू आई थिंक। मैम, आई हैव आई 70 हैव in CAT. Should I drop or कैट में 70 परसेंटाइल पे टू बी ऑनेस्ट इतना कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आई थिंक अगर आपको एमबीए करना ही है, आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आप श्योर रहिए कि आई डोंट नो मतलब आप अच्छे से प्रिपेयर करिए पहले विथ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल एंड आप कैट के साथ-साथ अलग एग्ज़ाम्स भी दीजिए लाइक स्नैप और आगे भी 2-3 और एग्ज़ाम्स अभी भी लाइन्ड अप है लाइक सीमैट या सीईटी तो आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपका स्कोर आता है तो। बट इफ यू स्टिल वांट टू परस्यू एमबीए तो आप एक ड्रॉप ईयर लेकर फिर वापस ट्राई करिए, आई वुड सजेस्ट। बट स्टिल द कॉल इज़ योर्स अगर आपका इतना ही है जाना है बट देखिए आरओआई और इन सब में हिट होगा ही क्योंकि 70 परसेंटाइल पे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा और कॉलेज मिलेगा तो फिर उसका फीस और जो आपको प्लेसमेंट्स मिलेंगे वो उस हिसाब से नहीं होंगे, राइट? थोड़ा बहुत यू विल हैव टू बी कैलकुलेटिव इन दैट। right? ठीक है। So someone is asking, can you make a video on SOP for colleges, statement of purpose? ठीक है, ये हम लेट मी एक्सप्लोर यार, कैसे कोई कोई स्पेसिफिक कॉलेज पूछ रहा है क्या? टेक, एक बार टेक एन 513, कैन यू लेट मी नो व्हिच कॉलेजेस आर आस्किंग एसओपीज फ्रॉम यू? So we'll plan accordingly. I'll just do some research. IRMA is very good for marketing. So if you're opting for sales and sales type के role,
अगर सेल्स में आपको स्टार्ट करना है तो आप चालू कर सकते हो। एज़ IRMA इज़ अ गुड कॉलेज, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, यू कैन गो फॉर इट। NMIM is located in Mumbai. Yes, it is. अच्छा, दैट इज़ आस्किंग SOP क्या? ठीक है, लेट मी सी इफ आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट दिस ईयर। हाउ टू कनेक्ट विद यू। या समवन इज़ आस्किंग। ओके। मैंने एक ऑफिशियल मेल आईडी शेयर किया है, अगर आपको उस पे कोई क्वेरी है, यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स आल्सो इन माय वीडियोस। एंड उसके बाद में लिंक्डइन एक चैनल है, इफ यू यू वांट टू कनेक्ट यू कैन सर्च फॉर मी ऑन लिंक्डइन। So, I am supplying RO water door to door and earning 45,000 per month, but my work is very hard. यार हार्ड वर्क तो सब कुछ ही है, बट आपको बेसिकली देखना है कि आप किस तरीके से लेवरेज क्रिएट कर सकते हो, या कैन यू हायर समवन एट अ मे बी 10,000 15,000 सैलरी टू आउटसोर्स दिस लेबर वाला वर्क फॉर यू। तो ऐसे लेवरेज के पर्सपेक्टिव से सोचना होता है, जो आप पैसे कमा रहे हो उसको रीइन्वेस्ट करके किस तरीके से और अपना टाइम गेन करके और प्रोडक्टिव चीज़ों में स्पेंड कर सकते हो। इट कैन बी कैपिटल लेवरेज और इट कैन बी कैपिटल लेवरेज और इट कैन बी लेबर बेस्ड लेवरेज। तो या तो लोगों को आप काम में रख सकते हो, दैट विल बी लेबर लेवरेज, या तो आप पैसे से एक और आउटलेट क्रिएट कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ दिस बिज़नेस बेसिकली वर्क्स, बट क्योंकि मैं खुद एक बिज़नेसमैन नहीं हूँ, मैंने कभी बिज़नेस किया नहीं है पर से, सो इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू आंसर। बट थोड़ा इसको और ऑनलाइन लाने की कोशिश करिए, ट्राई टू गेट मोर कस्टमर्स, मे बी दैट कैन हेल्प। सो आशुतोष इज़ आस्किंग कॉलेजेस लाइक एफएमएस, बीएचयू कंसीडर करना चाहिए आरओआई फैक्टर। भाई एफएमएस एंड बीएचयू नहीं कंसीडर करोगे तो क्या कंसीडर करोगे? एफएमएस नहीं कंसीडर करोगे तो क्या कंसीडर करोगे? पता नहीं। What skills are required for sales and marketing job and sir academics weightage? तो मार्केटिंग एंड सेल्स जॉब के लिए यार कोई एक एक स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं चाहिए। बहुत बड़ा सेल्स एंड मार्केटिंग भी बहुत ब्रॉड है, ठीक है? इट इज़ अ वेरी ब्रॉड वो रेंज सेल्स एंड मार्केटिंग। इसमें सेल्स की भी स्किल्स चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल के स्किल्स चाहिए, ब्रांडिंग कर रहे हो तो ब्रांड मैनेजमेंट की स्किल्स चाहिए, ई-कॉमर्स में कर रहे हो तो ई-कॉमर्स के स्किल्स चाहिए। तो इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। तो लुक फॉर दोज़। ई-कॉमर्स में अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, गूगल एड्स सीख सकते हो, इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन एड्स, लॉट ऑफ द ऑनलाइन एसईओ सीख सकते हो। ब्लॉग्स के थ्रू कैसे सोशल मीडिया सीख सकते हो। सेल्स में तो आपको पहले एफएमसीजी कंपनीज़ काम कैसे करती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाउ डू रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सीएनएफ एजेंट्स, हाउ डू दे वर्क, ये सब देखना होता है। सो सर एफएमएस दिल्ली वाला नहीं, एफएमएस बीएचयू। अच्छा, ये आईआईटी बीएचयू का एमबीए कॉलेज आप बोल रहे हो। तो आपने एफएमएस लिखा तो मेरे को एफएमएस सबसे पहले तो वही समझ में आएगा एफएमएस। यार बीएचयू भी अच्छा कॉलेज है, आप कंसिडर कर सकते हो। तो देख लो यार, आई डोंट नो, इतना डिटेल में नहीं पता। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन, फॉर वन पर्सन टू 200-300 कॉलेज का आप में से पूछा हाउ इज़ दिस, हाउ इज़ दिस, हाउ इज़ दिस? यू हैव टू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस, राइट? आई कैन टॉक अबाउट द टॉप 50-60 colleges because a lot of data, a lot of information is regarding that is available online, and a lot of people have shared their experiences also. So we can take some insights, we can speak to a couple of more people and get some insights. But अगर आप हर रैंडम 300-400 कॉलेज के बारे में पूछोगे, then it will be very difficult for us to answer also, right? तो एक बार देखो, एक बार ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर सोर्सेस हाउ दैट कॉलेज इज एंड लाइक व्हाट इज द एवरेज प्लेसमेंट एंड ऑल इन दैट कॉलेज। मे बी यू कैन गेट अ फेयर अंडरस्टैंडिंग वेदर टू जॉइन इट और नॉट। या एकेडमिक्स का कॉल कॉल आने पे कोई वो कोरिलेशन नहीं आता है। आपका परसेंटाइल अच्छा है तो आपको कॉल आ जाएगा गौरव। दैट डज नॉट मीन कि कॉल नहीं आएगा। स्नैप डोंट डू इट दिया, इसका क्या मतलब है? समझ नहीं आपने आया। धोखा दे दिया। स्नैप ने धोखा तो दे दिया? स्नैप डोंट डू इट दिया, मेरे को तो ऐसा दिख रहा है। DOKHA लिखा है। अच्छा, ये जो धोखा? अच्छा, मैं तो DONT लिख रहा, पता नहीं क्या अलग ही। चलो यार, तो कीर्ति, इफ यू वांट टू आंसर एनीथिंग, आई अदरवाइज़ थिंक, लाइक हाँ। आई मेरा हो अ, गया, आई एम डन फॉर द सेशन। स्नैप एनी जो क्वेस्ट है क्वेश्चन्स कट आई ऑफ कैन दिस टेक इन द ईयर। कमेंट्स। या श्योर, वी कैन टेक द नेक्स्ट कमेंट्स, मतलब जो भी जिनके भी रह गए हैं कमेंट्स, हम लोगों ने आंसर नहीं किए हैं, वो लोग अपने पोस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो लाइव हो जाएगा हमारे चैनल्स पे, एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस लाइव सेशन, एंड यू कैन पोस्ट योर थैंक्स। कमेंट्स देयर, वील आंसर इट। या। सो थैंक यू ओके। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। A lot many people joined,
So thank you for joining. Keep asking questions. I hope all of you get into your dream business schools this year or next year. Do well and do amazing in your careers. And chalo, so we'll call it off for today. Thank you so much. So good night. Take care. We'll connect you up with Thank you you, all everyone. once again. Thank you. Bye. Bye. Bye, guys. Have a good night.